Jai Shri Krishna. Today we will talk about the third chapter of the Bhagavad Gita. In the first chapter, we learnt about Arjun's grief on seeing his relatives and Gurujan and Pitameh. He did not want to fight. And in the second chapter, again, he repeated that he did not want to fight. But from the 11th chapter, when he completely surrendered to God, then Lord Krishna started his discourse and told him that it is his duty to fight from the point of view of Gyan Yoga and from the point of view of Karma Yoga. So he started the discourse about Karma Yoga in the second chapter, in the second part of the second chapter. Now in the third part again we move on to, he continues to discourse about the yoga of action or Karma Yoga. Chapter 3, the Bhagavad Gita. Arjun said, Krishna, if you consider knowledge as superior to action, why then do you urge me to this dreadful action, O Keshav? So Arjun said, if you consider knowledge as superior to action, Gyan Yoga as superior to Karma Yoga, then why do you ask me to perform my duty from the standpoint of Karma Yoga? You are, as it were, puzzling my mind by these seemingly involved expressions. Therefore, tell me the one definite discipline by which I may obtain the highest good. So, I am confused. Which one to choose? You please tell me definitely the one discipline which is better for me. Sankhya Yoga or Karma Yoga? Shri Bhagavan said, Arjun, in this world, two courses of sadhana have been enunciated by me in the past. In the case of the Sankhya Yogi, the sadhana proceeds along the path of knowledge, whereas in the case of the Karma Yogi, it proceeds along the path of action. So, God can be attained by many ways. There are 4 ways to attain God: Sankhya Yoga or Gyan Yoga, Karma Yoga, Dhyan Yoga, Bhakti Yoga. So these 4 paths in the later chapters, God will enunciate the Dhyan Yoga and Bhakti Yoga. So here he says, I have described 2 yogas, Gyan Yoga and Bhakti Yoga. In the case of the Gyan Yogi, the sadhana, the sadhana proceeds along the path of knowledge. ये ज्ञान रखना ही काफ़ी है कि ईश्वर के शरीर नश्वर है और आत्मा अजर अमर है. आत्मा न मारता है न मारा जाता है, इसलिए तुम युद्ध करो. और कर्म योग ये है कि फल की इच्छा के बिना कर्म करो. रिजल्ट जो भी हो, कर्म को भगवान के प्रति सेक्रीफाइस की तरह अर्पण करके करो, तो वो कर्म योग है. उससे इंसान कर्म बंधन में नहीं पड़ता है, मोक्ष को प्राप्त होता है. Man does not attain freedom from action merely without entering upon action, nor does he reach perfection merely by ceasing to act. So, अगर तुम सोचते हो ज्ञान योग का मतलब सिर्फ ज्ञान रखना है, उसका ये मतलब नहीं है, क्योंकि इंसान को मोक्ष केवल बिना कर्म किए मोक्ष नहीं प्राप्त होता. इंसान को बिना कर्म किए मोक्ष नहीं प्राप्त होता, ना ही वो मोक्ष को पाता है केवल इनएक्शन से, अकर्म से, कर्म को त्याग के. अकेला कर्म करना छोड़ दो तो उससे तुम्हें मोक्ष नहीं प्राप्त होगा. Surely none can ever remain inactive even for a moment, for everyone is helplessly driven to action by moods of Prakriti. तो जो सात्विक, राजसिक, तामसिक त्रिगुणमयी माया है, ये हर इंसान को काम करने पे मजबूर करती है. कोई भी इंसान बिना काम किए एक पल भी नहीं रह सकता. अपनी स्वभाव के परवश हुए सब लोग काम करते हैं. सात्विक, राजसिक या तामसिक काम करते हैं अपने स्वभाव के परवश हुए. यदि एक सात्विक व्यक्ति है तो सात्विक कर्म करेगा, राजसिक व्यक्ति तो राजसिक काम करेगा, और जो तामसिक व्यक्ति है वो तामसिक काम करेगा. He who outwardly restraining the organs of sense and action keeps mentally dwelling on objects of senses, that man of deluded intellect is called a hypocrite. तो यदि आप सोचो कि हम जबरदस्ती
काम को त्याग दिया, हमने कर्म करना छोड़ दिया, लेकिन मन में तो वही इंद्रियों के भोग घूमते हैं। तो केवल कर्म को छोड़ने से जो है त्याग नहीं होता। जो व्यक्ति मन से तो उन्हीं सेंस ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोचता है और एक्सटर्नली अपने ज्ञानेंद्रियों को काम करने से रोक लेता है, ऐसा व्यक्ति मोहित व्यक्ति है, कंफ्यूज्ड है और पाखंडी है, हिपोक्रेट है। On the other hand, he who controlling the organs of sense and action by the power of his will and remaining unattached undertakes the yoga of action through those organs, Arjun, he excels. On the other hand, जो व्यक्ति अपने ज्ञानेंद्रियों को वश में करके और अपनी विल पावर से कर्म करता है, अनासक्त होकर अपने कर्म इंद्रियों को कर्म में लगाता है, आसक्ति रहित होकर, ऐसा व्यक्ति कर्मयोगी कहलाता है और वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ही एक्सेल्स, वो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है यदि वो इंद्रियों को उनके अर्थों से कंट्रोल करके और अपनी विल पावर से उनको निष्काम कर्म में लगाता है, ऐसा व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। Therefore, do you perform your allotted duty? For action is superior to inaction. Abstaining from action, you cannot even maintain your body. इसलिए अपना कर्म करो, क्योंकि कर्म करना जो है वो अकर्म से बेहतर है, और कर्म को त्याग कर तुम अपने शरीर का निर्वाह भी नहीं कर सकते हो। Man is bound by his own action except when it is performed for the sake of sacrifice. Therefore, Arjun, do you diligently perform your duty free from attachment for the sake of sacrifice alone? मनुष्य कर्म बंधन में नहीं पड़ता जब वो कर्म को एक भगवान के प्रति अर्पण हुए यज्ञ हवन की तरह से करता है। जब इंसान अपनी ड्यूटी को भगवान के प्रति अर्पण किए हुए कर्म की तरह करता है, तब वो कर्म बंधन में नहीं फंसता। इसलिए अर्जुन, तुम अपनी ड्यूटी को करो, अपने धर्म को करो, अनासक्त होकर, केवल भगवान के प्रति अर्पण करके। Having created mankind with their duties specified at the beginning of creation, the Creator Brahma said to them, "You shall prosper by this. May this yield the enjoyments you seek." तो सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा ने सृष्टि के आदि में सृष्टि को उत्पन्न करके लोगों को आदेश दिया कि समाज को वर्ण आश्रम धर्म में विभाजित करके उनको उपदेश दिया कि तुम अपनी अपनी ड्यूटी को करो, अपने अपने धर्म को करो, देवताओं को प्रसन्न करो और बदले में देवता तुम्हें तुम्हारी अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करें। तो वर्ण आश्रम धर्म ये होता है कि समाज को 4 भागों में विभाजित किया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और 4 तरह के उनके आश्रम थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। तो वर्ण आश्रम धर्म के विभाजन के अनुसार अपने धर्म को फॉलो करो और भगवान के प्रति देवताओं को प्रसन्न करते हुए यज्ञ हवन आदि करो। इससे देवता तुम्हें तुम्हारी मन चाही वस्तुएं देंगे और तुम देवताओं को प्रसन्न करो और देवता तुमको प्रसन्न करें। Foster the gods through this and let the gods be gracious to you. Each fostering the other, you will attain the highest good. इस तरह एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए तुम और देवता लोग हाईएस्ट गुड को प्राप्त होगे, परम पद को प्राप्त होगे। Fostered by sacrifice, the gods will surely bestow on you unasked all the desired enjoyments. He who enjoys the gifts bestowed by them without offering anything through them in return is undoubtedly a thief. तो जब यज्ञ हवन आदि करोगे तो देवता लोग तुम्हारे ऊपर बिना मांगे ही सारी मनचाही वस्तुएं प्रदान करेंगे।
जो इन मनचाही वस्तुओं को ले तो लेता है, लेकिन उसके उपरांत देवताओं को कुछ अर्पण नहीं करता है, वो एक चोर की भांति है। The virtuous who partake of what is left over after sacrifice are absolved of all sins. Those sinful ones who cook for the sake of nourishing their body alone partake of only sin. तो जो महान आत्माएं भगवान को प्रसाद अर्पण करके फिर अपना भोजन करते हैं, वे एब्जॉल्व ऑफ ऑल सिंस, सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग केवल अपने शरीर के निर्वाह के लिए ही भोजन पका के खा जाते हैं, देवताओं को अर्पण नहीं करते, वे पाप के भागी होते हैं। All beings are evolved from food. Production of food is dependent on rain. Rain ensues from sacrifice, and sacrifice is rooted in prescribed action. Know that prescribed action has its origin in the Vedas, and the Vedas proceed from the indestructible. Hence, the all-pervading infinite is always present in sacrifice. सारे लोग भोजन से पैदा होते हैं, और भोजन की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वर्षा से होती है। वर्षा यज्ञ से होती है, और यज्ञ प्रिस्क्राइब्ड एक्शन से होता है, और प्रिस्क्राइब्ड एक्शन वेदास से आए हैं, और वेदास ब्रह्म से आए हैं, भगवान से, परमात्मा से निकले हैं। इसलिए सदा हवन में, कर्म में, ड्यूटी में, धर्म में भगवान प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि सब लोगों की उत्पत्ति भोजन से होती है, भोजन की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, यज्ञ प्रिस्क्राइब्ड एक्शन से होता है, प्रिस्क्राइब्ड एक्शन वेदस से निकला है, वेदस ब्रह्म से निकले हैं। इसलिए तुम ये मानो कि हमारे यज्ञ हवन आदि में सदा ब्रह्म प्रेजेंट रहते हैं। Arjun, he who does not follow the wheel of creation, the set in motion in this world, and leads a sinful and sensual life, he lives in vain. तो जो इस तरह से वर्ण आश्रम धर्म वाली ड्यूटीज अपनी बिना ड्यूटी, अनासक्त भाव से ड्यूटी किए बिना जो व्यक्ति एक तरह की पाप भरी जिंदगी जीता है कि भगवान कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं अपनी मर्ज़ी से आया हूँ, अपनी मर्ज़ी से जीऊँगा, जो मेरा मन चाहेगा मैं करूँगा, वो जो उसकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है धर्म को नहीं करता है, भगवान के प्रति अर्पण करके भोजन को नहीं पाता है, ऐसा व्यक्ति पापी होता है और उसका जीना व्यर्थ है, वो पृथ्वी पे एक बोझ है। He, however, who takes delight in the self alone and is gratified with the self and is contented in the self has no duty to perform. और जो ब्रह्म में लीन हो गए पुरुष हैं, जो अपने आप में ही, जो कहते हैं अहम ब्रह्मोस्मि, जो अपने आप में ही खुश हैं, संतुष्ट हैं, कंटेंटेड हैं, उनके लिए कोई ड्यूटी नहीं है परफॉर्म करने के लिए, वो ब्रह्म में लीन हो गए हैं। In this world, that great soul has nothing to gain by action, nor by abstaining from action, nor has he selfish dependence of any kind on any being. इस संसार में ऐसे महान व्यक्ति के लिए कुछ भी पाने योग्य शेष नहीं रह गया है, ना तो कर्म करके और ना कर्म को छोड़ करके, और ना ही वो किसी के ऊपर निर्भर है किसी चीज़ के लिए। ऐसा व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो चुका है, भगवान में लीन हो चुका है, समाधि में स्थित हो चुका है। Therefore, go on efficiently doing your duty constantly without attachment, doing work without attachment, man attains the supreme. इसलिए सदा अपना धर्म करो, अपना कर्म करो बिना आसक्ति के। इस तरह बिना आसक्ति के कर्म करते हुए मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, जन्म मृत्यु के बंधन में फिर नहीं गिरता है। यदि आप किसी मन की कामना करके कर्म करते हो, फल की इच्छा से कर्म करते हो, तो वो फल की इच्छा प्राप्त करके वापस कर्म बंधन में, इस संसार जन्म मृत्यु के चक्कर में वापस फंस जाते हो। लेकिन यदि अनासक्त भाव से अपना धर्म करते हो तो फिर परम पद को प्राप्त हो जाते हो, ब्रह्म में लीन हो जाते हो, परमात्मा को प्राप्त हो जाते हो।
It is through action alone that Janak and other wise men attained perfection. Having in view the maintenance of the world order too, you should take to action. तो जनक को विदेह कहते हैं। विदेह मतलब गृहस्थी में रहते हुए भी, संसार में रहते हुए भी वो ब्रह्म में लीन थे। वो केवल अपना धर्म समझ के अपनी ड्यूटी करते थे, आसक्ति नहीं रखते थे। दूसरी तरफ जो महान आत्माएं होती हैं वो संसार ऑर्डर से चलता रहे इसलिए अपना कर्म करते हैं। यदि बड़ा मनुष्य जिसको दूसरे लोग कॉपी करते हैं, आम आदमी कॉपी करते हैं महान आत्माओं को, यदि वो अनासक्त भाव से अपना धर्म नहीं करेगा तो बाकी समाज में भी क्योस हो जाएगा। तो संसार में ऑर्डर रखने के लिए भी अपनी ड्यूटी बड़े आदमी को, महान आत्मा को परफॉर्म करनी चाहिए। For whatever a great man does, that very thing other men also do. Whatever standard he sets up, the generality of men follow the same. तो जो भी काम एक महान आत्मा करती है, दूसरे उसको कॉपी करते हैं, उसका पाथ फॉलो करते हैं, उसके पद चिन्हों पे चलते हैं। जो भी आदर्श को वो स्थापित कर देता है, बाकी लोग उसी आदर्श को फॉलो करते हैं। Arjun, there is no obligatory duty in all the three worlds for me to do, nor is there anything worth attaining unattained by me, yet I continue to work. देखो अर्जुन, अब जैसे मैं हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मेरे लिए कुछ भी प्राप्त करने योग्य वस्तु नहीं है, और तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ भी करने लायक नहीं है, और कुछ भी पाने को शेष नहीं है। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं सदा कर्म करता रहता हूँ। Should I not engage in action scrupulously at any time, great harm will come to the world, for Arjun, men follow my path in all matters. यदि मैं कर्म ना करूं, यदि एक भी पल के लिए मैं कर्म ना करूं, तो ये संसार नष्ट हो जाएगा, क्योंकि सारे मनुष्य मेरे पद चिन्हों पे चलते हैं, मेरा दिखाया मार्ग पे चलते हैं। यदि एक दिन ईश्वर, एक दिन नेचर में सूर्य ना निकले, बारिश टाइम पे ना हो, मौसम टाइम पे ना आए, तो संसार में विनाश हो जाएगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं यदि मैं कर्म करना छोड़ दूँ तो ये संसार में विनाश हो जाएगा। If I cease to act, these worlds will perish. Nay, I should prove to be the cause of confusion and of the destruction of these people. तो यदि मैं कर्म करना छोड़ दूँ तो सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, और सब लोग ये कहेंगे कि मैं इस सारे विनाश का कारण हूँ, और लोगों के नष्ट होने का कारण हूँ। Arjun, as the unwise act with attachment, so should the wise men seeking maintenance of the world order act without attachment. जिस तरह मूर्ख व्यक्ति आसक्ति से कर्म करता है, इसी तरह बुद्धिमान व्यक्ति, ज्ञानी पुरुष को अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए, ताकि दूसरे लोग उसको, उसके पद चिन्हों पे जो चलते हैं, वो उनको गाइड करने के लिए एक ज्ञानी पुरुष को अनासक्त होकर काम करना चाहिए, ताकि दूसरे लोग भी अनासक्त होकर कर्म करें। A wise man established in the self should not unsettle the mind of the ignorant attached to action, but should get them to perform all their duties, duly performing his own duties. तो जो ज्ञानी पुरुष है उसको अज्ञानी पुरुषों के माइंड को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको गाइड करना चाहिए अपना धर्म पालन करने के लिए, बाय परफॉर्मिंग हिज ओन ड्यूटीज़। कैसे? अपना धर्म फॉलो करने से, उसको सिर्फ अपना धर्म फॉलो करना चाहिए, बाकी देखा देखी सब फॉलो करेंगे उसके पाथ को। In fact, all actions are being performed by the modes of Prakriti. He whose mind is deluded by egoism thinks I am the doer. तो सारे कर्म जो हैं वो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां जो हैं वो कर रही हैं, लेकिन जो अज्ञानी पुरुष है वो सोचता, अहंकार के वशीभूत होकर वो समझता है कि मैं करता हूँ, मैं अहम,
तो ईगोइज्म जो होती है, इग्नोरेंस जो होती है, इग्नोरेंट आदमी जो है, अज्ञानी पुरुष, वो सोचता है मैं करता हूँ, जबकि ये ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ अपने अपने अर्थों में विचरती हैं, अपना अपना काम करती हैं, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। मैं अकर्ता हूँ, लेकिन अज्ञानी पुरुष अहंकार के वशीभूत होकर कहता है मैं करता हूँ। However, he who has true insight into the respective spheres of gunas and their actions, holding that it is the gunas that move among the gunas, does not get attached to them, Arjun. तो जो ज्ञानी पुरुष है, जिसको भौतिक संसार की जानकारी है, जो ज्ञान जान गया है, वो जानता है कि सात्विक, राजसिक, तामसिक जो त्रिगुण है, त्रिगुणमयी माया जो है, ये संसार त्रिगुणमयी माया का विस्तार है। और सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 तरह के एक्शन हैं और 3 तरह के लोग। इट इज़ द गुणस दैट मूव अमंग द गुणस। तो ये भौतिक संसार जो है उसमें तीनों त्रिगुणमयी माया का विस्तार है। सात्विक, राजसिक, तामसिक तरह के लोग सात्विक, राजसिक, तामसिक तरह के काम करते हैं। तो वो उन कर्मों से अटैच नहीं होता, आसक्त नहीं होता। Those who are completely deluded by the gunas of Prakriti remain attached to those gunas and actions. The man of perfect knowledge should not unsettle the mind of those ignorant of imperfect understanding. तो जिनकी बुद्धि भ्रमित हो गई है त्रिगुणमयी माया से, वो उन गुणों में आसक्त रहते हैं और ये कहते हैं कि ये कर्म मैंने किया है, मैं करता हूँ। द मैन ऑफ परफेक्ट नॉलेज, जो ज्ञानी पुरुष है, शुड नॉट अनसेटल द माइंड ऑफ दोज इग्नोरेंट ऑफ इम्परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग। तो जो ज्ञानी पुरुष है उसको उन लोगों को, अज्ञानियों को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, केवल अपना धर्म करते रहना चाहिए। अपने आप धीरे धीरे अज्ञानी जो हैं वो ज्ञानी पुरुषों की तरह अपना अपना धर्म करने लग जाएंगे। Therefore, dedicating all actions to me with your mind fixed on me, the self of all, free from desire and the feeling of mume and cured of mental agitation, fight. इसलिए अर्जुन, सारे कर्मों को मेरे प्रति अर्पण करके, अपने मन को मुझ पर स्थित करके, मैं जो कि परमात्मा हूँ, सर्वत्र विद्यमान हूँ, सब में रहने वाली आत्मा हूँ, फ्री फ्रॉम डिज़ायर एंड द फीलिंग, और कामना से मुक्त होकर काम करना है, आसक्ति से मुक्त होकर काम करना है। एंड द फीलिंग ऑफ म्यूम, कि मैं करता हूँ, इस भाव से काम नहीं करना है कि ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ अपने अपने अर्थों में विचर रही हैं। मैं केवल दृष्टा हूँ, मैं केवल साक्षी हूँ। तो फीलिंग ऑफ आई एंड माइंड से मुक्त होकर, कामना से मुक्त होकर, एंड क्योर्ड ऑफ मेंटल एजिटेशन, और जो तुम्हारे मन में भ्रम चल रहा है उससे भी मुक्त होकर फाइट, युद्ध करो, अपना कर्म करो, अपना धर्म करो। Even those men who with an uncavailing and devout mind always follow this teaching of mine are released from the bondage of action. जो व्यक्ति मेरे में लीन होकर मेरी इस टीचिंग को फॉलो करते हैं, यदि सदा कर्म योग में लीन है, जो व्यक्ति सदा अपने मन को मेरे में स्थित करके और मेरे इस कर्म योग को फॉलो करते हैं, मेरे बताए हुए मार्ग को फॉलो करते हैं, और रिलीज फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ एक्शन, वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में फिर से नहीं पड़ते। दे however who finding fault with this teaching of mine do not follow it, take those fools to be deluded in the matter of all knowledge as lost. जो कि अज्ञानी पुरुष जो कि मेरे बताए गए इस कर्म योग में फॉल्ट फाइंड करते हैं, कमी निकालते हैं, डू नॉट फॉलो इट, वो इसको फॉलो नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि मैं ही करता हूँ। टेक दोज फूल्स टू बी डिल्यूटेड इन द मैटर ऑफ ऑल नॉलेज एज लॉस्ट। ऐसे अज्ञानी पुरुषों को तुम समझो कि वो लॉस्ट हो गए हैं, वो नष्ट हो गए हैं, विनाश को प्राप्त हो गए हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि।
तो उनकी बुद्धि जो है उनको विनाश की तरफ ले जा रही है, जो सोचते हैं मैं करता हूँ। मैंने मार्ग दिखाया है, कर्मयोग का मार्ग, जो बिना आसक्ति के अपना धर्म करने का मार्ग है। जो इसको फॉलो नहीं करते और कहते मैं ही करता हूँ, ऐसे लोग समझो विनाश को प्राप्त हो गए हैं। ऑल लिविंग क्रीचर्स फॉलो देयर टेंडेंसीज, इवन द वाइज मैन एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द टेंडेंसीज ऑफ हिज ओन नेचर, व्हाट कैन रिस्ट्रेन डू। तो सब लोग अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। जो ज्ञानी पुरुष है वो भी अपने स्वभाव से परवश हुआ कर्म करता है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। Attraction and repulsion are rooted in all sense objects. Man should never allow himself to be swayed by them, because they are the true principal enemies standing in the way of his redemption. तो राग द्वेष, अट्रैक्शन और रिपल्शन, ये सारे सेंस ऑब्जेक्ट्स में है, रूटेड है। मैन शुड नेवर अलाउ हिमसेल्फ टू बी स्वेड देम हिमसेल्फ। मनुष्य को राग द्वेष से ऊपर उठ जाना चाहिए, क्योंकि ये राग द्वेष जो है ये उसकी मुक्ति के मार्ग में बाधा डालते हैं। राग द्वेष जो है मनुष्य की मुक्ति के मार्ग में बाधा डालती है, इसलिए राग द्वेष से ऊपर उठ जाना चाहिए मनुष्य को। One's own duty, though devoid of merit, is preferable to the duty of another well performed. Even death in the performance of one's own duty brings blessedness, another's duty is fraught with fear. तो अपना धर्म करना चाहिए, चाहे वो आपको मेरिट से विहीन लगे, चाहे वो तुच्छ लगे, अपना धर्म फिर भी अपना धर्म करना चाहिए। दूसरे का धर्म नहीं करना चाहिए। अपने धर्म में मरना भी श्रेयस्कर है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। Arjun said, now impelled by what creation does this man commit sin even involuntarily as though driven by force? तो अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, मनुष्य पाप क्यों करता है, पाप की तरफ क्यों बढ़ता है, जैसे कि कोई उसको उस तरफ धकेल रहा हो, तो पाप क्यों करता है? श्री भगवान said, it is desire, begotten of the element of rajas, which appears as a wrath. It is insatiable and grossly wicked. Know this to be the enemy in this case. तो मनुष्य पाप क्यों करता है? पाप इच्छा के परवश हुए काम करता है। इच्छा जब पूरी नहीं होती तो उसको क्रोध आता है। तो ये राजसिक है, एलिमेंट ऑफ रजस से निकला है, राजसिक है डिज़ायर। तो ये हमारे शत्रु की तरह हमें विनाश की तरफ ले जाती है। जो इच्छा पूरी नहीं हुई वो क्रोध पैदा करती है और हमें हमारे विनाश की तरफ धकेल देती है। As fire is covered by smoke, mirror by dust and embryo by the amnion, so is knowledge covered by desire. तो डिज़ायर जो हमारी ज्ञान है उस पे डिज़ायर का पर्दा पड़ जाता है, ज्ञान पे डिज़ायर का पर्दा पड़ जाता है। और जैसे कि अग्नि के ऊपर धुएं का कवर होता है, शीशे के ऊपर धूल का कवर होता है और जो भ्रूण है उसके ऊपर कवर होता है, इसी तरह नॉलेज के ऊपर डिज़ायर का कवर होता है, ज्ञान के ऊपर इच्छा का परत चढ़ी होती है। And Arjun, knowledge stands covered by this eternal enemy of the wise, known as desire, which is insatiable like fire. तो जो हमारा ज्ञान है वो हमारे ये परम शत्रु जो डिज़ायर है, बुद्धिमान व्यक्ति का परम शत्रु जो डिज़ायर है उससे कवर है। और ये डिज़ायर अग्नि की तरह कभी शांत ना होने वाली है। The senses, the mind and the intellect are declared to be its seat, screening the light of truth through these, it dilutes the embodied soul. तो इंद्रियां, मन और बुद्धि पे बैठ जाती है डिज़ायर, और स्क्रीनिंग द लाइट ऑफ ट्रुथ थ्रू दीज, और ज्ञान के ऊपर पर्दा पड़ जाता है। सेंसेस, माइंड एंड इंटेलेक्ट के ऊपर जब डिज़ायर बैठती है तो हमारे ज्ञान के ऊपर पर्दा पड़ जाता है। इस तरह ये आत्मा को कंफ्यूज कर देती है, डिल्यूड कर देती है, उसको मोह में डाल देती है, भ्रम में डाल देती है
और बर्बादी की तरफ ले जाती है। Therefore, Arjun, you must first control your senses and then kill this evil thing which obstructs ज्ञान and विज्ञान। तो अर्जुन, अपनी इंद्रियों को वश में करके और हम अपने परम शत्रु डिज़ायर को मारो। डिज़ायर जो कि ज्ञान और विज्ञान को कवर कर देती है, साकार ब्रह्म की नॉलेज को और निराकार ब्रह्म की नॉलेज को कवर कर देती है, ऐसी डिज़ायर जो है उसको मार डालो। The senses are said to be greater than the body, but greater than the senses is the mind, greater than the mind is the intellect, and what is greater than the intellect is he. इंद्रियां शरीर से ज़्यादा ग्रेट होती हैं और सेंसेस से, इंद्रियों से ज़्यादा सुपीरियर माइंड होता है, माइंड से ज़्यादा सुपीरियर इंटेलेक्ट होता है, और जो इंटेलेक्ट से भी सुपीरियर है वो है आत्मा। तो इंद्रियां शरीर से सुपीरियर होती हैं, इंद्रियों से सुपीरियर मन होता है, मन से सुपीरियर बुद्धि होती है और बुद्धि से सुपीरियर आत्मा होता है। Thus Arjun, knowing the self which is higher than the intellect and subduing the mind by reason, kill this enemy in the form of desire that is hard to overcome। तो इस तरह अर्जुन आत्मा को जानते हुए, जो कि बुद्धि से भी ऊपर है, और अपने मन को कंट्रोल करो अपने रीजनिंग से, और इस परम शत्रु डिज़ायर को मार डालो जो कि काबू करने में बहुत कठिन है। Thus in the Upanishad sung by the Lord, the science of Brahm, the scripture of Yoga, the dialogue between Shri Krishna and Arjun ends the 3rd chapter entitled Karma Yoga or the Yoga of Action। तो इस तरह कर्मयोग के अध्याय में के हम अंत में आए हैं, और वही 2nd चैप्टर के 2nd पार्ट से जो कर्मयोग शुरू किया भगवान ने, तो अभी तक कर्मयोग चल रहा है। कर्म में कुशलता लाना, कर्म अनासक्त करना, भगवान के प्रति अर्पण करना, और इंसान पाप की तरफ क्यों जाता है, डिज़ायर हमारी बुद्धि को हर लेती है, तो अपने बुद्धि के द्वारा इस डिज़ायर को किल करना है और परम पद को प्राप्त करना है। अभी तक इतना बताया कृष्ण जी ने। अगला 4था अध्याय हम नेक्स्ट सिटिंग में करेंगे। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।